Hello students, I am going to continue with the chapter Definite Integration of 12th standard, exercise 4.2. So in previous lecture we learned the different 8 properties of the definite integration. So in this exercise we have to use all these properties. Now we start with the question number 1, example number 1. So see, in this exercise there are 3 questions. Each question contains 15 examples, means there are total 45 examples in this example. So we start with the question number 1. So integration of x plus 1 upon root x dx, and limit is from 1 to 9. So how we can solve this? So root x we can write like this way, that is x raised to half. So uh, after that we are going to split this x raised to half to each terms in the numerator. So we are going to split up this denominator for each term of the numerator. So see how we can write. So x as it is upon x raised to half, and the remaining, that is limits are as it is. I am going to separate this. So plus 1, so 1 upon x raised to half, and limits get separated. After that the uppermost, the quantity x in the numerator having the power 1, so this half goes to upper side, and so since there is a division there is a subtraction of the powers. So x raised to 1 minus half dx, and here we are going to take this 1 outside, and this x raised to half in the numerator, so it becomes minus half. Now 1 minus half, that is half x raised to half dx, limits as it is, and here x raised to minus half, this term is as it is, and after that we are going to take the integration. So x raised to half plus 1 upon half plus 1, and now limit is from 1 to 9, plus x raised to minus half plus 1 upon minus half plus 1, and the limit is from 1 to 9. Now see, यहाँ पे हाफ प्लस 1 का मतलब है यहाँ पे 3/2 हो, और यहाँ पर भी 3/2 होगा. यहाँ पे 1 माइनस हाफ, और माइनस हाफ प्लस 1 मतलब यहाँ पे है हाफ, और यहाँ पर भी है हाफ. सो यहाँ पे मैंने लिखा है x raised to 3/2 upon 3/2 plus x raised to half upon half, and the limits are as it is, that is 1 to 9. After that I am going to take these quantities in the numerator. So 3/2 becomes 2/3, and we are taking it outside this bracket. Similarly 1/2 becomes 2, and we are taking it outside, and the bracket contains, that is 3 x raised to 3/2, and the limit is from 1 to 9, and x raised to half, and limit is 1 to 9. Now we are going to put, that is upper limit minus lower limit. तो यहाँ पे क्या होगा, x की जगह पे क्या आएगा, फर्स्ट 9 माइनस x की जगह पे क्या आएगा 1. तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये 2/3 एज इट इज, 9 raised to 3/2 माइनस 1 raised to 3/2. सिमिलरली यहाँ पे x को मैं हटा दूंगी, और उसके जगह पे क्या आएगा, 9 raised to half माइनस 1 raised to half. सो अभी ये जो है 9 raised to 3/2 हम कैसे लिख सकते हैं, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखा है. सो रूट एक्स का मतलब आपको पता है कि रूट एक्स मतलब एक्स रेस टू हाफ होता है. तो हाफ मतलब ये जो 2 है ये स्क्वायर रूट का 2 है, मतलब नीचे जो नंबर होता है वो रूट का होता है. मतलब 9 raised to 3/2 का मतलब है ये 9 जो है वो स्क्वायर रूट में है और इसका क्यूब है. तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्यूब मतलब क्या होगा, 9 स्क्वायर इंटू, और वी कैन राइट लाइक दिस वे ऑल्सो, दैट इज 9 इंटू 9 इंटू 9. 9 क्यूब का मतलब है 3 टाइम्स 9. अब ये 2 बार जो 9 आया है इसके लिए मैं एक बार 9 लिख सकती हूँ बाहर आके, बिकॉज ये स्क्वायर रूट में है. एंड अगेन द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज नथिंग बट 3, एंड सो 9 इंटू 3 द आंसर इज 27. सो हियर आई राइट दैट इज 27 minus, so you know that is anything raised to 1 is 1, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 1 लिख दिया, प्लस 2 9 raised to half मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज नथिंग बट 3, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1. सो 27 minus 1 that is 26, 2/3 as it is, plus 2 as it is, 3 minus 1 that is 2. सो यहाँ पे आएगा 26 2 ज़ा 52 upon 3
plus 2 2s are 4 and the LCM is 3. Taking cross, so 52 plus 12, and so my final answer is 64 upon 3. So this is the answer of this example. After that we are going to start with the example number 2. तो सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है देखो, दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड द लिमिट इज फ्रॉम 2 to 3. सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैटर्न. तो इसमें हम क्या करते थे, वी गोइंग टू फाइंड आउट द थर्ड टर्म. तो थर्ड टर्म फाइंड आउट के लिए हम पहले 2 टर्म्स कंसिडर करते थे एंड द फॉर्मूला इज हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर. सो कोएफिशिएंट ऑफ x इज 5, सो हाफ इंटू 5 ब्रैकेट स्क्वायर. सो यहाँ पे आएगा 25 अपॉन 4. तो एक बार मैं 25 ऐड करूँगी और एक बार मैं सब्सट्रैक्ट करूँगी. तो ये पहले 2 टर्म ऐसे ही आएंगे, 25 अपॉन 4 मैंने ऐड किया, ये 6 ऐसे ही लिख दिया और माइनस 25 अपॉन 4. तो फर्स्ट 3 टर्म्स का एक ग्रुप है और बाद में 2 टर्म्स का एक ग्रुप है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 5 अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस यहाँ का जो एलसीएम है वो एलसीएम होगा 4 एंड 6 4s आर 24 माइनस 25, सो माइनस 1 आंसर आएगा. तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है, दैट इज माइनस 1 अपॉन 4 एंड बाकी का लिमिट वगैरह तो ऐसे ही आएगा. सो अगेन द इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3, 1 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन 2 स्क्वायर. अगर फर्स्ट टर्म स्क्वायर में है तो सेकेंड भी हम स्क्वायर में लिख सकते हैं. सो 1/4 को मैंने लिख दिया 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो होगा दैट इज़ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, द फॉर्मूला इज 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी. एंड सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ, दैट इज़ 1 अपॉन 2a. ए क्या है, हाफ, तो 2 इंटू हाफ log x माइनस ए. तो x माइनस ए, x क्या है यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा है वो x है, दैट इज x प्लस 5/2. तो x प्लस 5/2 माइनस ए इज हाफ. सेम क्वांटिटी नीचे प्लस साइन करके हम लिखेंगे. एंड अभी हमने इंटीग्रेशन तो ले लिया है, तो सिर्फ ये लिमिट्स है वो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के लिए लिखते हैं, दैट इज 2 to 3. तो अभी हमें ये सॉल्व करना है. यहाँ पे 2 2 तो कैंसिल हो गया, लॉग अभी ये 2 टर्म जो है 5/2 एंड माइनस हाफ, इसका आंसर मैंने यहाँ पे निकाला है. तो एलसीएम इज 2, 5 माइनस 1 दैट इज 4 अपॉन 2, 2 2s are 4. तो यहाँ पे आ जाएगा x, ये x एज इट इज़ प्लस 2 एंड नीचे इन दोनों का ही एडिशन होगा. सो 2 एंड 5 प्लस 1 दैट इज 6, सो 6 अपॉन 2 दैट इज 3, 2 3s are 6. तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3 एंड लिमिट इज फ्रॉम 2 to 3. एंड नाउ वी गोइंग टू यूज दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो ये जो है ये ब्रैकेट में 2 बार लिखूंगी सेम 1 and 2. फर्स्ट में अपर लिमिट में लिखूंगी x की जगह, सो 3 + 2 अपॉन 3 + 3 माइनस अभी 2 से लिखूंगी 2 + 2 अपॉन 2 + 3. तो माय फाइनल आंसर इज log 5 अपॉन 6, 3 + 2 दैट इज 5 अपॉन 6 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 4 अपॉन 5. सिंस देयर इज अ सब्सट्रैक्शन वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन. सो 5 अपॉन 6 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 5. सो 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई करके 5/4 होगा, तो इंटू 5/4. सो 5 5s are 25 अपॉन 6 4s are 24. सो दिस इज द आंसर. नाउ सी द थर्ड वन. सो द एग्जाम्पल नंबर थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ cot square x dx and the limit is from π/4 to π/2. So in your textbook these limits are given, that is wrong, because same example old textbook में भी है और वहाँ पे जो लिमिट्स दी गई है वो है π/4 to π/2. तो आप ये नए वाले 2020 के जो टेक्स्ट बुक में जो लिमिट्स दिए गए हैं वो रॉन्ग है. वो 0 to π/2 ऐसे दिया है लेकिन वो रॉन्ग है. तो आपको ये थोड़ा सा बदल के लेना होगा. यहाँ पे आपको लिखना है π/4 से π/2 तक. So see the example carefully. So what is the example? That is integration of cot square x. तो आपको ये आइडेंटिटी पता होगी, that is 1 + cot square x is equals to cosec square x. तो यहाँ पे हम cot square x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. इसको 1 को यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cosec square x -1.
and the limit is pi by 4 to pi by 2. After that we are going to separate each term. So cosec square x dx एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 1. तो cosec square x का इंटीग्रेशन तो आपको पता है वो है माइनस कॉट एक्स. इंटीग्रेशन ले लिया तो हम लिमिट स्क्वायर ब्रैकेट को देते हैं, दैट इज पाई बाय 4 टू पाई बाय 2, ये वाला. एंड यहाँ पे 1. सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1, दैट इज x. सो पाई बाय 4 टू पाई बाय 2. तो हम x को रिप्लेस करेंगे पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4. तो यही ये माइनस साइन मैंने से बाहर लिख दिया. कॉट पाई बाय 2 माइनस कॉट पाई बाय 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. माइनस वाला साइन ऐसे ही, अपर लिमिट दैट इज पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4. नाउ सी द वैल्यू ऑफ कॉट पाई बाय 2. पाई बाय 2 मतलब 90. सो कॉट 90 इज 0 एंड कॉट पाई बाय 4 इज 1. एंड माइनस यहाँ पे हम दोनों का सब्सट्रैक्शन हम करते हैं तो उसका आंसर आता है पाई बाय 4. तो यहाँ पे क्या आया है, माइनस ऑफ माइनस 1 माइनस पाई बाय 4. सो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 1. तो 1 माइनस पाई बाय 4 इज द आंसर. नाउ सी द फोर्थ एग्जाम्पल. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स. एंड नाउ सी यहाँ पे जो हमें लिमिट्स दी गई है वो है माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4. तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखो ये 1 माइनस साइन एक्स का कंजुगेट पेयर मैंने यहाँ पे ले लिया. सो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स. तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स इज एज इट इज़. सिंस वी सी द स्ट्रक्चर दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी, सो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4. अगेन यहाँ पे हमें मिल जाता है 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज़ एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर इज नथिंग बट द कॉस स्क्वायर एक्स. लिमिट माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4. यहाँ पे हम जो न्यूमरेटर है वो सेपरेट करेंगे. तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. तो इसका जो आंसर है दैट इज़ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट द सेक स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 तक. यहाँ पे साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज साइन अपॉन कॉस इंटू कैसे लिखना है मैंने लिखा है यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स 2 बार आएगा. तो 1 अपॉन कॉस एक्स मैंने पहले लिखा है इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स. तो इसका आंसर क्या आ जाता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स. तो मैंने यहाँ पे वो डायरेक्टली लिखा है दैट इज सेक एक्स इंटू टैन एक्स. After that we are going to take the integration. So integration of sec square x is nothing but the tan x and the value is from minus pi by 4 to pi by 4. यहाँ पे the integration of sec x into tan x is nothing but sec x minus pi by 4 से pi by 4 तक. अभी हमें वैल्यू पुट डाउन करना है. सो tan x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो tan pi by 4 माइनस tan ऑफ माइनस pi by 4. यहाँ पे माइनस है तो हमें माइनस लिखना है. नेक्स्ट वन दैट इज सेक पाई बाय 4 माइनस सेक ऑफ माइनस पाई बाय 4. ठीक है. सो tan पाई बाय 4 का जो वैल्यू है वो है 1. अभी यहाँ पे दिख रहा है कि tan ऑफ माइनस एंगल. तो आपको ये पता है कि tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस ऑफ tan थीटा. तो ये माइनस ऑफ tan थीटा आ जाएगा तो वो माइनस माइनस प्लस होगा बाहर का. एंड अगेन वी गेट दैट इज tan पाई बाय 4. सो द वैल्यू इज 1. अगेन यहाँ पे सेक पाई बाय 4 इज नथिंग बट √2 एंड ओनली कॉस एंड सेक के लिए आपको पता है कि उसका माइनस एंगल वो प्लस होता है. मतलब सेक ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट सेक थीटा. तो ये क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा. तो इसका वैल्यू भी √2 और इसका भी वैल्यू √2. तो ये दोनों कैंसिल होंगे. उसका आंसर होगा 0. सो 2 प्लस 0. सो माई आंसर इज 2. नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 5. ये थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है. दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3. इंटीग्रेशन इज लिमिट इज फ्रॉम 3 to 5. तो यहाँ पे हमें बाइनोमियल दिख रहे हैं तो मैंने क्या किया है, उसका कंजुगेट पेयर यूज़ किया है. तो इसका कंजुगेट पेयर क्या आ जाएगा, प्लस. तो एक बार मैंने मल्टीप्लाई किया और एक बार मैंने डिवाइड किया है एंड लिमिट इज सेम. यही लिमिट्स एंड dx वो हमें ऐसे ही कंटिन्यू करना है. तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा 2x प्लस 3 प्लस √2x माइनस 3. एंड यहाँ पे हमें दिख रहा है दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी स्ट्रक्चर. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर.
तो √2x + 3 का स्क्वायर माइनस √2x - 3 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करके हमें क्या मिलता है देखते हैं। सो √2x + 3 + √2x - 3 दैट इज न्यूमरेटर इज एज इट इज। जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 2x + 3 - 2x - +3, तो 2x कैंसिल, 3 + 3 दैट इज 6। तो ये जो 1/6 है तो मैंने आगे स्टेप में इसको बाहर ले लिया है, 2x + 3 + 2x - 3। नाउ सी 1/6 दोनों को मैंने सेपरेट किया है, दैट इज 2x + 3 रूट निकाल दिया और इसको रेज टू हाफ लिख दिया। सेम इसके लिए भी हम ऐसे करेंगे, दैट इज 2x - 3 रेज टू हाफ एंड लिमिट इज फ्रॉम 3 to 5, यहाँ पर भी 3 to 5। तो 1/6 यहाँ पे आ जाएगा 2x + 3 रेज टू इंटीग्रेशन ले लिया है तो हाफ + 1 अपॉन हाफ + 1, लेकिन देखो यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है वो है 2x। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि इसका भी डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 एंड इस 2 से हम इस टोटल का जो आंसर आता है इसका उसको हम डिवाइड करते हैं। तो 1/2 यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 से मैंने डिवाइड किया है एंड लिमिट इज एज इट इज, दैट इज 3 to 5। नाउ सेम दैट इज 2x - 3, यहाँ पे हाफ + 1 अपॉन हाफ + 1, यहाँ पर भी x के लिए कोएफिशिएंट है दैट इज 2। सो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, मतलब 1/2 से दैट इज 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अब 1/6 बाहर है वो ऐसे ही रहेगा। तो बैलेंस क्या रहा यहाँ पे, 2x + 3 ब्रैकेट रेज टू 3/2। यहाँ पे पर भी 2 पर 2 से 2 कैंसिल होगा, 2x - 3 रेज टू 3/2 एंड ये जो 1/18 है कैसे आया, यहाँ पे 3 है और 6 3 जार 18 और यहाँ पर भी 3 है तो 6 3 जार 18, तो 18 मैंने बाहर लिखा है। नाउ यहाँ पे आके हमने जो इंटीग्रेशन लिया है, अभी हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो x का वैल्यू जो है वो फर्स्ट 5, सो 5 2 जार 10 + 3 दैट इज 13 रेज टू 3/2। अब हम x का वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 2 जार 6 इंटू 3 दैट इज 6 + 3 दैट इज 9 रेज टू 3/2। सेम यहाँ पे 5 2 जार 10 - 3 दैट इज 7 रेज टू 3/2 एंड माइनस अभी लोअर लिमिट 3 2 जार 6 - 3 दैट इज 3 रेज टू 3/2। अभी हमने जो स्टार्ट में एग्जांपल मैंने आपको बताया था, वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि नीचे वाला नंबर जो रहता है वो एक्चुअली रूट वाला होता है और इसका मतलब 13³ ये स्क्वायर रूट में है। देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिया है, दैट इज 13 रेज टू 3/2, मतलब ये जो 13 है वो रूट में स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट मैंने लिखा और 13³ मतलब 3 टाइम्स है। तो ये हम 13 को एक बार लेते हैं बिकॉज स्क्वायर रूट में 2 अगर 13 हमें मिलते तो वो 13 बाहर आता है। सो 13 √13 ये हमें आंसर यहाँ पे मिला। सॉरी मैंने यहाँ पे या 13 √13 ये 13 है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट सेम केस यहाँ पर भी, दैट इज स्क्वायर रूट में 7 का क्यूब है। यहाँ पे मैंने 9 का ये लिखा था, 9 कैसे है मैं बताती हूँ। 9 रेज टू 3/2 मतलब स्क्वायर रूट में 9³ है, स्क्वायर रूट में 9³, तो ये दोनों के लिए 9 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट में 9 मतलब उसका आंसर 3 9 3 जार 27। अभी यहाँ पे 7 है तो जैसे 9 मैंने लिखा है वैसे हम 7 को भी लिख सकते हैं। तो 2 बार 7 मतलब एक 7 बाहर आ जाएगा और एक रूट में ही रहेगा, तो 7 √7। वैसे ही सेम 3 का भी होगा, दैट इज 3 √3। So this is the final answer of this example. And so this is all about the first 5 examples of exercise 4.2 and the remaining examples we'll see in the next lecture. Thank you.